NSDC's eSkill India has joined hands with American India Foundation for enhancing employability skills and providing career guidance to college students through its course Essential Employability Skills for Indian Youth. You can follow 4 simple steps to enroll in this course. Step 1. Log in or register yourself on eSkill India portal. To enroll in the course, click on the above banner on eSkill India portal. The banner will appear on the eSkill India main page. In case banner is in motion or not visible, you can click on the corporate training button available to reach the NSDC AIF training program. If you have registered yourself before, you can log in and continue. But if you are a new user, click on sign up, fill all the details. You will need to verify your phone number or email ID. Once verified, click on I agree to terms and conditions. You have now completed the registration process. Now you can log in and enroll in the course. Step 2. Enter coupon code. After you have logged in, enter the coupon code and click submit. Step 3. Select course and language. The course is available in 2 languages. To do the course in English, click here. Kindly remember, you will not be able to change the language of the course after enrollment. Select the language of the course carefully. Click on Enroll. Click on OK. Step 4. Go through all the modules and clear the final exam to earn any certificate. After completing all the lessons in each module, you will have to give final assessment. Completing the final assessment is mandatory to complete the course and earn certificate. To give final exams, click on Final Exam. Each candidate will be given 3 attempts to clear the exam or improve the final score. The best score out of the 3 would be displayed on e-certificate. Now click on Quizzes. Click on Take Quiz and complete the quiz. So to start with today's workshop, what is the Future Ready project? So sharing the vision to develop future workforce in India, Dell Technologies in partnership with American India Foundation, that is AIF, National Skill Development Corporation, NSDC, and University of Mumbai has launched Future Ready project to equip the workforce with career skills. The project aims to provide skill development for students through career mentoring, leveraging online skill platforms, and providing market-aligned skill training for employability and inculcating entrepreneurial mindset. AIF has impacted about 6.7 million lives across 26 states of India so far and counting. So here I would like to start talking about what is career planning. So as you can see on the screen, also, there is a difference between career and job. So a job is a work that you perform to earn money to support your basic needs. Whereas a career is a long-term professional journey that you may determine based on your passions. It is the path that you embark upon to fulfill your professional goals and ambitions. Choosing a career is unquestionably one of the most important decisions you will ever make. It impacts just about every facet of your life. So as I was talking about career planning, on the screen you can see a diagram on the very that there are 4 stages or 4 components of career planning. The very first one would be to know yourself, that is self-assessment. Then you further go ahead and check your explore your options. You explore the career options that you have. Then you get focused and choose one of these options. And the last stage will be to take action, where you take your action, devise an action plan and further work on it. So we must explore our area of interest, our passions, strengths, traits in order to know which job profile will best suit us. So hence self-assessment is a very important part of the career planning. Now, based on self-assessment, we discover various educational training, various opportunities, and also follow industrial trends that suit best our personality and interest, and and make plans to achieve the same. But for just one second, please.
तो जैसे कि मैं बोल रही थी, आप अलग अलग स्टेजेस से जाते हो, तो एक बार आप खुद को जान लो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। फिर बाद में आप देखोगे आपके हाथ में क्या ऑप्शंस है, पर आप क्या क्या ऑप्शंस को लेके कि आपको किस करियर में इंटरेस्ट है, आप वो करियर्स में देखेंगे कि हाँ ठीक है, इसमें से एक करियर आप चूज करोगे, और फिर आप वो करियर पे फोकस करके फिर आगे आप उस चीज पे एक्शन लोगे कि मुझे इस चीज के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, और फिर आप उस करियर में इन्वॉल्व होगे। तो यहाँ पे हमारा करियर मेंटरिंग टेस्ट आपके बहुत काम में आएगा। मेरा स्क्रीन फ्रोज हो गया, एक मिनट। Ma'am, your screen is visible. Yeah, it is visible, but I think the screen has frozen. It won't go ahead. Okay. Yes. तो कोई बात नहीं। तो इसमें यहाँ पे हमारा करियर मेंटरिंग टेस्ट आपको बहुत हेल्प में आएगा। तो हमारा करियर मेंटरिंग टेस्ट क्या है? तो इसमें आपको ये करियर मेंटरिंग टेस्ट, जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहा जाता है, इसमें आपको अपने पर्सनालिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से टेस्ट मिलेंगे। तो उसमें आपको अलग अलग सवाल रहेंगे, जिससे आपको अपना पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा, आपके इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा, और उस हिसाब से फिर आप आगे जाके अपने पर्सनालिटी को परख के, अपने इंटरेस्ट को जान के एक करियर चूज कर पाओगे। फिर आपको आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आगे जाके आपको क्या चूज करना है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? यस। राइट, थैंक यू। हाँ, तो ये है करियर मेंटरिंग टेस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। नेक्स्ट अभी आता है इसके बाद पिक्चर में अपना एनएसडीसी। अब एनएसडीसी क्या है? एनएसडीसी को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। तो एनएसडीसी अपने ई स्किल इंडिया पोर्टल पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे 5 घंटे के। ये आप कोर्सेज आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, यहाँ इस पोर्टल पे। जो आपको 5 घंटे का आपको ट्रेनिंग मिलेगा, उसका फिर आपको क्विजेस देना है, एग्जाम्स देना है, और फिर वो उसके लिए आपको उस चीज का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये एक छोटा वीडियो है मेरे पास जो मैं अभी प्ले करूंगी। तो कैसे रजिस्टर करना है एंड ऑल, उस चीज का आपको यहाँ से पता चलेगा। आपको आवाज आ रही है कि नहीं, बस बता देना मुझे। Ma'am, you're audible. We can't hear the video. Apurva?
तो ये था वीडियो कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। आई एम सॉरी, ये स्क्रीन जूम में बार बार फ्रीज हो रहा है। प्लीज जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक जगह। ये ब्रिज है ओवर द रिवर शोलुटेका। तो होंडुरस में, सेंट्रल अमेरिका में, एक ब्रिज है नदी शोलुटेका के ऊपर। तो ये आप देख सकते हो, ये ब्रिज बेसिकली, ब्रिजेस का काम क्या होता है कि अपन को हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है। पर ये फोटो में आप जैसे देख सकते हो, हम बेसिकली कहीं नहीं पहुंच रहे। तो ये जगह का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉरल है। तो हुआ क्या था इन 1996, ये जो 484 मीटर लंबा ब्रिज था वो बांधा गया था ये नदी शोलुटेका के ऊपर। तो ये जगह में हरिकेन्स बहुत आते थे। तो यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स को बुला के ये ब्रिज बनाया गया, ताकि अपर तो ये जितने भी हरिकेन्स आए इसके बाद ये ब्रिज ने बेसिकली वो सबको झेल लिया और अब तक ये ब्रिज खड़ा है। पर हुआ ये कि ये जो नदी है वो उस ब्रिज के नीचे से बहने के जगह पे वो अभी उसके ब्रिज के बाजू में बहने लग गई। तो अभी बेसिकली ये ब्रिज का कोई काम ही नहीं रहा कि ये ब्रिज एक जगह से दूसरे जगह पे हमें नहीं ले जा रही है। जो ब्रिज का काम होना चाहिए, बेसिकली ये ब्रिज पूरा नहीं कर रहा था उसका, तो ये अभी यूजलेस हो गया। तो मॉरल ये स्टोरी का ये है कि हमें भी इस ब्रिज से सीखना चाहिए कि हमेशा प्रोग्रेसिव रहो, हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर हम वहीं एक ही जगह पे टिके रहे तो आगे हमारा बेसिकली हम यूजलेस हो जाएंगे, या फिर हम किसी चीज में काम के नहीं रह जाएंगे। तो हमें ये ब्रिज से सीखना चाहिए कि एक जगह पर टिके ना रहे, सीखते रहे हर रोज नई चीजें, जिससे हमें करियर में हेल्प हो। तो आगे इसी चीज पे मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बात करना चाहूंगी। तो एम्प्लॉयबिलिटी क्या होता है? एम्प्लॉयबिलिटी बेसिकली ये होता है, इसका डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं कि a set of achievements, skills, understanding and personal attributes that make someone more likely to gain employment and be successful in their chosen occupations, which benefits themselves, their workforce, their community and the economy। जिसका मतलब यही है कि आपको आपके जो स्किल्स है, आपके जो एजुकेशंस है, इससे हम खुद को कैसे जॉब दिला पाएंगे, इसका मतलब हमारा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो आपके पास ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, हर रोज नई चीजें सीखते रहना चाहिए, और खुद का सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि बात करने का स्किल्स, प्रेजेंट करने का स्किल्स, ये सब अगर आपकी बहुत अच्छे हो तो आपको वर्क फोर्सेस आपको एम्प्लॉय कर लेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होते हैं? तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है? तो जैसे कि मैंने कहा था, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब हमने वो ब्रिज का एग्जाम्पल देखा कि द शोलुटेका रिवर के ऊपर जो ब्रिज बांधा गया था, कैसे वो एक ही जगह पे सालों से वहीं पर टिका हुआ है और अभी वो यूजलेस हो चुका है, क्योंकि वो बेसिकली जो उसका काम है वो उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। तो हमें वैसे नहीं होना है, हमें सीखते रहना है। अगर हमें किसी वर्क एनवायरनमेंट में डाल दिया गया हो
तो हमें उस हिसाब से काम करना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। हमें अगर आगे जाके कोई नया टेक्नोलॉजी आए या कोई नए काम करने का तरीका है तो उस हिसाब से हमें खुद को बदलते रहना चाहिए। अगर हम नहीं बदले, अगर हम वैसे ही रहे, तो हमारा उस वर्कफोर्स से हमें शायद निकाल दिया जाए या आगे कोई और वर्कफोर्स में आगे कोई और जॉब ना मिले, क्योंकि हम सीख नहीं रहे हैं। अगर हम आज के जमाने के हिसाब से नहीं चले, अगर हम प्रोग्रेसिव नहीं रहे, तो हम फिर एज आई हैव सेड बिफोर, हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, नोकिया जैसे आप सब जानते हो पहले जमाने में कितना बड़ा नाम था टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में। बट कुछ सालों बाद जब स्मार्टफोन्स आए और नोकिया ने खुद को नहीं बदला, हम वो ही छोटे डब्बे वाले सेल्स यूज करने लगा नोकिया, तब उसको इंडस्ट्री से निकाल दिया गया। तो अगर वैसे ही हम नोकिया का एग्जाम्पल लिए, तो हमें उस हिसाब से अभी जो नोकिया बहुत सालों बाद फाइनली इंडस्ट्री में आया है, अभी प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी अपना नाम वो उस उतना नहीं कमा पा रहा है जैसे कि पहले के जमाने में था, जितना पहले उसका नाम था। तो अभी वो सीख रहा है कि हाँ, मुझे भी जमाने के साथ चलना सीखना चाहिए था, पर अभी बहुत देर हो चुकी है, जबकि बाकी के लोग उसको ऑलरेडी ओवरटेक कर चुके हैं। नोकिया के अलावा नोकिया का जो पहले नाम था कि नोकिया वॉज वन एंड ओनली, उस टाइम पे अगर कोई फोन लेने जाए तो सबसे पहला नाम किसी के दिमाग में आता था वो था नोकिया। बट अभी बिकॉज नोकिया ने प्रोग्रेसिव नहीं रहा, नोकिया ने जमाने के साथ चलना नहीं सीखा, अभी लोग और फोन्स ने तब तक ओवरटेक कर लिया और अभी नोकिया का नाम उतना नहीं है जितना पहला था। सो नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी होता है। आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, आपको लोगों से सामने प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप जो सोचते हो, आप जो कहते हो, ये आपको सामने वालों को कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है। सामने वाले से बात करना और उनसे मैसेज कन्वे करना बहुत जरूरी होता है। ये स्किल्स आपको आना चाहिए, और ये कैसे आएंगे? तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन जैसे मैंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपको सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी चीजें आपको अपने एम्प्लॉयज, अपने जिसके साथ आप काम करते हो उसके साथ आपको एम्पैथी दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो आप अगर आप जिसके साथ काम कर रहे हो, आप उसके साथ बात करो, उनको समझो, उनके फीलिंग्स को समझो, और उनके साथ कांटेक्ट में रहो। ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट जितने बनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब जैसे आप जानते हो कि लिंक्डइन जैसा जो एक ऐप है, जहाँ पे लिंक्डइन जो ऐप है जहाँ पे आप कई लोगों के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हो। तो जहाँ जैसे एम्प्लॉयर्स, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको लिंक्डइन जैसे ऐप पे मिलेंगे, वहां पे आप उनसे कम्युनिकेशन करो या कनेक्शन जोड़ो, जिससे आपको नए नए जॉब्स क्या है मार्केट में, नए नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, ये आपको लिंक्डइन जैसे ऐप पे समझ में आएंगे, आप अगर वहां पे हो तो। नेक्स्ट है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो आपको हमेशा अपने टीम मेंबर्स के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, अकेले रह के नहीं चलेगा। तो बेसिकली आप कोलैबोरेट करो लोगों के साथ, टीम स्पिरिट मेंटेन किए रखो। तो हाँ, एक जो टीम होता है, हर हर एवरी पर्सन शुड बी अ टीम प्लेयर। जैसे कहते हैं कि आपको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना चाहिए। एक टीम में बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, तो आप अपने टीम को आगे उस हिसाब से बढ़ा सकते हो कि हर एक टीम मेंबर का आप हर एक टीम मेंबर की एक स्पेशलिटी होते हैं, तो उस स्पेशलिटी को आप जान के अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस हर एक पर्सन की एक एक स्पेशलिटी को साथ में क्या कहते हैं उसे,
उस स्पेशलिटी को जान के, उस स्पेशलिटी का यूज करके अगर आप वो जी स्ट्रेंथ या राइट स्ट्रेंथ, तो उस स्ट्रेंथ को आप यूज करके आप अगर कोलैबोरेट करोगे एक प्रोजेक्ट पे, तो आप उसको वो स्ट्रेंथ को जानना भी बहुत जरूरी है। और वो स्ट्रेंथ को आप कैसे जानोगे, तो आप टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करके, उनके साथ काम करके, उनको जान के, और फिर वो प्रोजेक्ट को आप आगे और सक्सेसफुल लेके जा सकते हो जब आप अपने टीम मेंबर्स के साथ इन टच में रहोगे, उनको जानोगे, उनका स्किल समझोगे और वो प्रोजेक्ट पे अप्लाई करोगे। इसलिए टीम वर्क और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज लीडरशिप। आप अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे टीम में नहीं रहना, मुझे तो लीडर बनना है। पर लीडर बनने के लिए भी आपको टीम प्लेयर होना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा लीडर वो ही होता है जो अपने टीम को बहुत अच्छे से समझे, जिसको पता है कि मेरे टीम में कौन लोग हैं, हर एक, और वो हर मेंबर की स्पेशलिटी क्या है, वो हर मेंबर की स्ट्रेंथ क्या है, वो हर एक मेंबर मुझे कौन से चीज में मेरे को ज्यादा अच्छे से हर एक स्ट्रेंथ क्या है उसकी, और वो किस चीज में मेरे को अच्छा फल ला के देगा, अच्छा सक्सेस ला के देगा, उसकी स्पेशलिटी क्या है, किस मेंबर को मुझे क्या काम देना चाहिए। तो वो एक अच्छा लीडर ही जानता है जो अपनी टीम को अपने साथ एक साथ लेके चलता है आगे। तो ये है अच्छे लीडरशिप की निशानियां। और एज आई सेड, एक लीडर को अपने टीम को जानना बहुत जरूरी होता है, और अगर वो लीडर अपने टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा है तो वो एक अच्छा लीडर कभी बन नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो आई एम वेरी श्योर नॉट जस्ट मी, एवरीवन एल्स हियर इज लाइक, हमें टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है आजकल। पूरा एक दिन हमें बहुत कम पड़ जाता है कि अरे यार ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, वो प्रोजेक्ट करना है। तो इस ऐसे टाइम पे टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है हमें। एंड ये हम टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो आप चाहे तो एक स्केड्यूल बना लो पूरे दिन का, कि नोट डाउन कर लो कि आज क्या काम करना है, ये आज क्या काम है जो आज कर ही लेना है। तो उस हिसाब से, उस पैटर्न से, उस टाइम टेबल से आप प्रोसीड करो, आप वो टाइम टेबल फॉलो करके पूरा अपना टाइम मैनेज करो। पर हमेशा याद रखना, ये टाइम मैनेजमेंट में हमें अपने फैमिली को भी टाइम देना है, हमें हमारे फ्रेंड्स को भी टाइम देना है। पूरा दिन जैसे आपने एक वो प्रोवर्ब सुना रहेगा, ऑल क्या था वो, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक डल बॉय। तो ऐसे उस हिसाब से अगर आप सिर्फ काम करते रहोगे और रिक्रिएशन के लिए टाइम नहीं रहोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आपको अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है, काम तो करना ही है अपना, बट थोड़ा रिक्रिएशन के लिए थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करो या बाहर घूमने जाओ, किसी से बात करो। तो इस हिसाब से हमें हमारा टाइम मैनेज करना है। सो नेक्स्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो जैसे मैंने पहले कहा कि आप अगर अपना टाइम बराबर से मैनेज नहीं कर पाते हो तो आपको स्ट्रेस होने लगता है कि अरे यार मुझे ये काम आज करना था और अब मैं ये काम कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ। तो उस फिर आपको स्ट्रेस होने लगता है कि यार पहले टाइम कर लेना चाहिए था, सब कुछ चीज का टाइम मैनेज कर लेना चाहिए था। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट बराबर से नहीं करोगे तो आपको उस चीज का स्ट्रेस होने लगेगा जो आपको नहीं करना है। एक टाइम टेबल बनाओ तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अच्छा, अगर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है तो भी आपका काम नहीं होगा। कैसे? अभी आपका तो पता नहीं, बट मैं ऐसे करती हूँ। अगर मैं किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेती हूँ कि अरे यार ये काम खत्म करना है, तो मैं वो काम कभी कर ही नहीं पाती। थोड़ा सा स्ट्रेस होना जरूरी होता है, वरना आप किसी काम को उतना सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कोई कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है? मुझे ऑडियो आ रहा है। हेलो हेलो, एकदा ना आम्हाला खायला
ओके, सो अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस आप मैनेज कैसे कर सकते हो, तो एक्सरसाइज करो, या जैसे कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, तो वो 8 घंटे की नींद एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। आप अपना टाइम बराबर से मैनेज करो, तो आपको स्ट्रेस उतना नहीं होगा। तो नेक्स्ट आता है डिजिटल कम्युनिकेशन। अभी अभी ये जो कोविड का टाइम है, पैंडेमिक का टाइम है, आप देख रहे हो कि जैसे जिन लोगों को टेक्नोलॉजी बराबर से हैंडल करने नहीं आ रही है, वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे। तो डिजिटल कम्युनिकेशन जो आप अभी मेल्स बनाओ, या अभी हम जैसे कर रहे हैं, हम वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, तो डिजिटल कम्युनिकेशन जो हम टेक्नोलॉजी के यूज से कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी होता है। अगर आज के जमाने में आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड नहीं हो, तो आपको फिर से जॉब्स में बहुत दिक्कत होंगी। तो नई नई रोज चीजें चीजें सीखते रहो, बहुत जरूरी है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट है हमारा डेटा लिटरेसी। तो डेटा लिटरेसी क्या होता है, जैसे कि अभी हम सीख रहे हैं, नए नए कोर्सेज सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और बात करते हैं लिटरेसी। डेटा लिटरेसी इज एज इम्पोर्टेंट एज लिटरेसी। बेसिक लिटरेसी जो हम पढ़ाई करते हैं, इट इज एज इम्पोर्टेंट एज डेटा लिटरेसी। हमें डेटा का नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए। हम जब भी किसी बात को किसी के सामने रखते हैं, तो उस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये हमारे पास किसी चीज को प्रूव करने के लिए डेटा नहीं है, तो हमारी वो चीज इररिलेवेंट हो जाएगी। तो आजकल के जो एम्प्लॉयर्स है, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिसको आज के जमाने के सारे चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो, और अपडेटेड रहते हो। सो हमारा नेक्स्ट है जॉब एप्लीकेशन इसेंशियल स्किल्स। तो हमें जॉब के लिए कौन से स्किल्स पता होने चाहिए, कौन से स्किल्स होने चाहिए हमारे पास। तो जैसे मैंने पहले कहा था, हमारा सबसे पहले होता है, वो है साइकोमेट्रिक रिपोर्ट। तो साइकोमेट्रिक रिपोर्ट अगर हम करते हैं, तो उससे हमें खुद के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारी पर्सनालिटी ट्राइट्स क्या है, हम हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमें किस चीज में, किस जॉब में इंटरेस्ट होगा। तो हमारा वहाँ वहाँ साइकोमेट्रिक रिपोर्ट बहुत हेल्प करता है। उसके बाद एक बार हमें पता चल जाए कि हमें हमारे इंटरेस्ट कहाँ पे है, हमें कौन सा करियर सूट करेगा, फिर हम उस करियर को लेके उस हिसाब से हम एजुकेशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसमें कोर्सेज करेंगे, तो वहाँ पे आप एजुकेशन लोगे और फिर उसमें क्वालिफाई करोगे। आगे जाके फिर आप उसमें अपना चॉइस बनाओगे, एक प्लान बनाओगे कि हमें कितने साल पढ़ाई करना है, कितने साल उसमें कौन से कोर्सेज करने हैं, और फिर उस हिसाब से आप उस पर काम करोगे। देन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो आप, जैसे मैंने पहले कहा था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सिर्फ हमारे एजुकेशन नहीं आता। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमारे सॉफ्ट स्किल्स, जो हमारे खुद के स्किल्स है, जो हम लोग ओवर द इयर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो भी आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अभी जॉब, अगर हमें जॉब चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेज्यूमे। तो रेज्यूमे क्या होता है कि रेज्यूमे एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे बारे में इंफो देता है, हम जिसके पास जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारा नाम रहेगा, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, जो हमारे स्किल्स होते हैं वो आते हैं। तो ये एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाना है, ये एक वीडियो है मेरे पास, जो हम आपके चैट बॉक्स में डाल देंगे, जो आप बाद में देख सकते हो।
So abhi, lastly, I would like to talk about my institute, that is Garware, Mumbai University's Garware Institute of Career Education and Development. तो हम एस्टैब्लिश हुए थे 1984 में बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड द गरवारे फाउंडेशन. हमारे फाउंडर थे लेट मिस्टर पद्म भूषण आबा साहिब गरवारे. हम गरवारे में ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. उसमें से कुछ आते हैं कि अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री में आते हैं BMS इन रिटेल मैनेजमेंट, PSc पेन टेक्नोलॉजी, बैचलर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट. अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में टूर मैनेजमेंट है, फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट है. पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम कोर्सेज में हम यहाँ गरवारे में प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग, हॉस्पिटैलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं. पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम में हम एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, मास मीडिया एंड जर्नलिज्म भी देते हैं. और ये कुछ और मास्टर्स डिग्री कोर्सेज है जैसे कि ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले कहा था, और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट. और ये कुछ और कोर्सेज है जो हम गरवारे में देते हैं स्टूडेंट्स को. थैंक यू. आगे आई थिंक आज का सेशन will be further done by today's speaker who is here. So Abhi, I will like to give the stage forward to Gaurav sir, who will be guiding students regarding civil services and government entrance exam. So to introduce Gaurav sir, he has 7 years of working experience in agriculture and agri-allied field. He has worked as a SR manager as an Indian Oilseeds and Produce Export Promotion Council under the Ministry of Commerce, Government of India. Also, he was authorized as signatory for health certificate for European Union for sesame crops. He has done Kharif crops surveys for sesame and groundnut in the year 2017 for Government of India. Currently, he is working at UMGICED. He is a visiting faculty for MABM and Retail Management as a subject matter specialist. Welcome aboard, sir. The stage is all yours. Hello, Gaurav, sir. Hello. तब तक मैं आपको वो रेज्यूमे वाला वीडियो प्ले कर देती हूँ. तब आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट आवर गेस्ट स्पीकर. Actually, he was there in the meeting, I think. Yeah, he told me he is here. Yeah, he was there in the meeting. Okay, till then we will play the resume video. Stephanie, can you do that, because I think I don't have the audio access to this. Okay, I will do that. Okay, thank you. Can you see the screen? Yes, we can see the screen.
Steffi, I think sir is in now. It's okay. Just carry on with the video. Okay. Steffi, the audio wasn't audible. Now can you hear it? It is common in joining workplace or changing a career path to have little Could you make it a bit louder? This can make it especially difficult to Yes, it's audible. Even if you have never had a formal job, you can still reflect in your resume on any job. It is important to make sure your resume is creative, it's different, it reflects you, and it stands out to employees. Here's how to do just that. There are many ways to structure your resume. Have a think about what your layout will be like to make it stand out. Remember, the key is to keep it simple. Good fonts to use are Times New Roman or Arial with the size set to 11. Headings should be bold because it's easier to read and stands out, and avoid using too much color as it draws attention away from the information, which is the most important part. Employers want to know what you can bring to their business. Your summary statement is your resume's elevator pitch. It should tell employers who you are, what you want from the job, and what you can offer to the organization or business. This should all sit at the top of your resume and be 2 or 3 sentences in length. Here is an example. I have a background in office management and have proven interpersonal and communication skills. I'm good at working in a team in a fast-paced environment. I'm seeking the opportunity to use these skills as the office assistant at your company. A good summary statement will clearly sum up what you are like professionally and introduce you to a prospective employer. It's the first thing a potential employer will see on your resume, so make sure your summary statement is strong. Employers love it when you include that you have skills to do certain tasks. So, brainstorm. Think about the times you've applied transferable skills to your everyday life. Do you meet deadlines for projects at school? This is an example that you are dedicated and motivated. Are there any times in your life when you created a to-do list to accomplish something? This is an example that you are organized to prioritize your tasks and your requirements. Other skills you may be able to include are communication skills, listening and writing skills, people skills, compassion, confidence, and motivation. So, what sets you apart from others? Why are you awesome? Have you taken part in any extracurricular activities? Perhaps you played soccer and helped your team score goals, or you're in a netball team that won a grand final. These are great examples of times when you've worked well in a team. If you're currently at school or have recently finished studying, use this to think of some more transferable skills which you can include in your resume. Even if you were still in high school, you can think about the classes you have chosen to study. Why did you choose them? And what have you learned from them? So good morning all. Are we done with the videos? Hello, am I audible? Yes, Yes, sir, we sir, can you hear are. you. Oh, Good great, morning. great. Good morning everyone. So सबसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा
In what language you want me to explain about the civil services? Hindi, English or Marathi? Or Hindi English mix? कोई बताएगा? You can type in a chat box. Hindi, English. Hindi. Both languages. सर हिंदी. हिंदी, ओके. So हिंदी और इंग्लिश सबके लिए कंफर्टेबल है मेरे ख्याल से, सबके लिए ठीक है, राइट? चलो. So जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम का नाम सुनते हो या फिर आपने सुना होगा यूपीएससी, एमपीएससी, है ना, तो एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या आता है? तो किस लिए होती है ये एग्जाम, कोई बता पाएगा? Anyone? You can type in the chat box your responses. You can type in the chat box. I'm waiting. Government job, IAS, IPS. What? Okay. अच्छा. So basically ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट की जाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से. सो एमपीसी जो है वो स्टेट लेवल पे होती है, यूपीसी जो है वो सेंट्रल लेवल पे होती है ना. तो जब मैं आपको बता रहा हूँ तो बी केयरफुल, आप उसको लिख कर रख सकते हैं, है ना. अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लगता है कि उसे लिख के रखना है, आप उसे लिख के नोट करके रख सकते हैं. यू कैन नोट इट डाउन. सो यूपीएससी में बेसिकली 24 डिफरेंट सिविल सर्विसेज आते हैं. उनके अंदर उसके लिए लाखों लोग हर साल अप्लाई करते हैं. दिस एग्जाम ये थ्रू आउट द ईयर चलती है. अब हम एक्चुअली क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा. मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, और अगर वक्त रहा तो थोड़ा बहुत इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. तो हर साल इसमें बेसिकली लाखों लोग अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 15 से 16 लाख 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं. फिर जो मेन एग्जाम होती है इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं. एक होता है प्रीलिम्स, देन होता है मेन एग्जाम एंड देन इंटरव्यूज. ठीक है. मैं चाहूँ तो यहाँ पे टाइप भी करके रखना चाहूंगा ताकि आप लोगों को प्रीलिम्स, मेन एंड इंटरव्यूज. Okay, if you want to note down, if you want to take the screenshot of it, you can take it. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. तो प्रीलिम्स में लाखों लोग अप्लाई करते हैं. उसमें से कुछ ही लोग जो है वो मेंस में क्वालिफाई होते हैं और सिर्फ कुछ हजार लोग इंटरव्यू तक जाते हैं. और उसमें से 1500, 2000 या 700, 800 जितनी भी पोजीशंस है उनमें वो सिलेक्ट होते हैं. अब ऐसा क्यों? इतना टफ है एग्जाम? नहीं, वो इतना टफ नहीं है. आपको स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी किस तरीके से आपको पढ़ना है. और उसमें से ज्यादातर जो पोर्शन है वो आपने आज तक जो पढ़े हो या फिर अभी डिग्री कंप्लीशन तक जो पढ़ोगे उसमें वो मैक्सिमम कवर हो चुका है. अब कौन सी पोजीशंस हैं, कौन से सर्विसेज हैं? फर्स्ट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, देन इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IRS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस. अब इसमें 3 टाइप के सर्विसेज हैं. एक होते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो इंक्लूड होते हैं. ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में आते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS, देन IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ICAS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ICLS, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस.
इस तरीके की तकरीबन 16 मतलब इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेलवे ट्रैफिक सर्विस भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ये ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज आती है, जिसमें पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, DNIPS और ये सारी सर्विसेज इसमें इसके अंदर आती है। तो जब हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम IAS की बात करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो IAS होने के बाद आप बेसिकली क्या करते हैं? अब IAS जो होते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं या IAS कैडर जो होते हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस है। इसमें इनका जो ट्रेनिंग है वो मसूरी में उसका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनका ट्रेनिंग किया जाता है। ये पुलिस सर्विस के बाद पुलिस के अंदर जो पुलिस एकेडमीज होती है, वहाँ पे उनका ट्रेनिंग किया जाता है। जो सीनियर पोजीशंस होती है IPS की, अब IPS ऑफिसर बेसिकली कहाँ कहाँ ज्वाइन होते हैं? जो रॉ का आपने नाम सुना होगा, रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, CBI, उसके अंदर IPS ऑफिसर जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं। IAS ऑफिसर ना कि बस सिर्फ कलेक्टर बन के रहते हैं, लेकिन जो कैबिनेट्स होते हैं उसके अंदर जनरल सेक्रेटरी पोजीशन जो होती है, वहाँ पे भी IAS ऑफिसर ज्वाइन होते हैं। जो फॉरेन सर्विस है, वहाँ आपने राजदूत सुना होगा, किसी कंट्री के राजदूत है, एम्बेसडर्स है, उसके लिए बेसिकली वो सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस। जो फॉरेस्ट सर्विस है उसके अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट की पोजीशन जो होती है, उसके लिए एग्जाम की जाती है। जो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कैडर जो होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करते हैं। और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब मुझे लगता है यहाँ पे कई सारे ग्रेजुएट्स हैं। आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स मिक्स है या फिर पर्टिकुलरली फ्रॉम द कॉमर्स और आर्ट बैकग्राउंड, ऐसा कुछ है? यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। I'm waiting. Mixed. Okay, great. So इस एग्जाम को जब आप देते हैं, जब एग्जाम के लिए अपियर करते हैं, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम को जब अपियर करते हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो होते हैं उसमें फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर इफ यू आर फ्रॉम एन ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, तो ओनली 6 टाइम्स, इसको सिर्फ आप 6 बार ही अपियर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। बाकी जो कैटेगरीज है या बाकी उसके लिए भी नंबर ऑफ लिमिटेशंस है। एज लिमिट है अप टू 32 ईयर्स, जिसमें रिलैक्सेशन पर्टिकुलरली सिर्फ कुछ ही वक्त मिलता है। तो इस एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होता है? अब ये जो एग्जाम है ये थ्रू आउट ईयर चलती है। जिस तरीके से मैंने कहा कि इसमें 3 टाइप्स है, तो 3 टाइप में फर्स्ट होती है प्रीलिम एग्जाम, देन होती है मेन एग्जाम, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो एग्जाम के अंदर बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो एग्जाम होती है, जो प्रीलिम्स एग्जाम, इसमें फर्स्ट पेपर है आपका जनरल स्टडीज, जो 200 मार्क्स का होता है, इट्स ऑफ 2 आवर्स। जो सेकंड होता है जनरल स्टडीज 2, CSAT, वो भी 200 मार्क्स का होता है। मतलब CSAT इज सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बेसिकली इसके अंदर आपको जनरल स्टडीज 1 और 2, ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पेपर्स होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरल स्टडीज 1 में 100 मार्क्स का होता है ड्यूरेशन, और 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के हैं। ड्यूरेशन उसका 2 घंटे का है, निगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। सेकेंड जो है, जिसे मैंने कहा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम CSAT कहेंगे, जो जनरल स्टडीज 2 पेपर है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स, 2 आवर्स। देन अब आप इसे पास करने के बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ये आपको सवाल होगा। जनरल स्टडीज 1 के अंदर क्या क्या सवाल पूछे जाते होंगे। जनरल स्टडीज है, उसके अंदर बेसिकली आपकी जो जनरल अवेयरनेस है और जो सब्जेक्ट्स हैं, जिनके अंदर इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारी चीजें जो होती है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब
जिस बैकग्राउंड से आपको, मान लीजिए अभी आपने आज तक जो पढ़ाई की है उसके अंदर का सारा पोर्शन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में उसमें सवाल पूछे जाते हैं। देन सेकंड जो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके अंदर जो आपका एप्टीट्यूड है कैंडिडेट का, आपका रीजनिंग और एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है, लॉजिकल रीजनिंग है, देन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन है, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। एक डिसीजन मेकिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो नेगेटिव मार्क्स में से एग्जेम्प्ट किए जाते हैं। देन द प्रीलिमिनरी एग्जाम एक आपके स्क्रीनिंग के लिए होता है कि किस तरीके से आप इसके लायक हो नहीं हो, ये देखने के लिए होता है आपके पास वो नॉलेज है या नहीं है। जो जनरल स्टडीज में होता है उसके सिलेबस में आप देखेंगे जो करंट इवेंट्स जो होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उसके ऊपर सवाल होते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके ऊपर सवाल होते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये उसके अंदर इंक्लूड होता है। जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, देन राइट्स इश्यूज, जो बेसिकली आपने आज तक पढ़ा ना हिस्ट्री और सिविक्स, तो सिविक्स में जो पार्ट होता है वो उसमें बहुत ज्यादा कवर होता है, बहुत बेसिक सवाल होते हैं। तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी यहाँ पे सवाल होते हैं जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिकल क्वेश्चन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। अब उसके लिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन और जनरल साइंस उसके ऊपर ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। जनरल पेपर 1 के लिए, प्रीलिम्स पेपर 1। इफ यू वांट, मैं आपको ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया या फिर जो कहा है मैं आपको टाइप कर देता हूँ ताकि आप लोग उसे ठीक से याद रखें। I hope you can see it in chat box. ठीक है। देन जो दूसरा पेपर है जनरल पेपर 2, प्रीलिम्स पेपर 2 जो होता है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसके अंदर आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, देन बेसिक न्यूमरेसी, जो क्लास 10th लेवल है, क्लास 10th लेवल के जो आपके सवाल थे कि नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी जो इंक्लूड होता है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। अब जब आप प्रीलिम्स पास कर देते हैं, इसके बारे में प्रिपेयर करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि अब तक जो है वो ये सारा कुछ कवर हो चुका होता है आपके 10th तक, 12th तक, है ना। फिर आते हैं हम थोड़ा सा मेन एग्जाम की तरफ। उसके बाद मेन एग्जाम जो होती है उसके अंदर 7 पेपर होते हैं। इट हैज 7 पेपर्स बेसिकली, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6 और 7। अभी जो 7 पेपर है उसमें बेसिकली क्या क्या आएगा, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पेपर है। इसमें पेपर ए, पेपर बी सेपरेट होते हैं जिसके अंदर कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज होती है जो 3 आवर्स का पेपर है। जो इंडियन लैंग्वेज होती है पेपर ए में, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस दी गई है उसमें से एक हिंदी, इंग्लिश, उसको आप चूज कर सकते हैं। देन जो पेपर बी होता है वो टोटल इंग्लिश पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है ऐसे, सो जो आपका कैंडिडेट की जो चॉइस होगी उस मीडियम में उसे उस पेपर को आप अपियर कर सकते हैं। जनरल स्टडीज 1 जो पेपर 2 है, इट इज कॉल्ड एज जनरल स्टडीज 1। उसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, उसके ऊपर सवाल होते हैं जो 250 मार्क्स के हैं। देन अगेन जो जनरल स्टडीज 2 है उसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पोलाइटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके ऊपर सवाल होते हैं। अब ये थोड़े टफ होंगे एज कम्पेयर विद आपकी जो प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए उससे थोड़े से टफ होंगे। देन जो जनरल स्टडीज 3 है उसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके ऊपर सवाल होंगे। जनरल स्टडीज 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, उसके ऊपर सवाल होते हैं। देन फिर 2 पेपर होते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं।
जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पेपर 1 और पेपर 2, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, यू शुड चूज दिस सब्जेक्ट वेरी वाइजली। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन चूज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, या साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल साइंस, आप इसमें से चूज कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो देखिए इसमें इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये भी सब्जेक्ट है। उसे आप लॉ भी है, मैनेजमेंट भी है, देन अगेन मैथमेटिक्स भी यू कैन आल्सो चूज। अगर इफ यू आर फ्रॉम अ आर्ट बैकग्राउंड, यू कैन चूज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स इज आल्सो देयर। So these are some of the choices you can get there, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। देन दूसरा जो है उसमें आप लैंग्वेज की जब बात करते हैं उसमें एक लिटरेचर होता है, लिटरेचर के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी लैंग्वेज में, जैसे बंगाली, आसमी, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, देन मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी भी है, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू, ये जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें से एक लिटरेचर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये होने के बाद बेसिकली आता है आपका इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू जो होता है, जो क्वालिफाई करते हैं मेन में भी, तो उनके इंटरव्यू हो जाते हैं। इंटरव्यू के लिए 275 मार्क्स अलग है। तो ये 2000 प्लस मार्क्स का टोटल पेपर होता है। ये तो तीनों एग्जाम मिला के जो होता है वो आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। और उसके बाद, और एक बात ध्यान रखिए कि जब वो फॉर्म्स निकलते हैं, ये फॉर्म्स जो निकलते हैं ये अप्रैल के बाद निकलते हैं। अप्रैल में जो एग्जाम होती है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है। जो मेन एग्जाम है वो, जो प्रीलिम्स है वो जून, जुलाई, अगस्त के नजदीक होती है। जो इंटरव्यूज होते हैं वो बेसिकली फेब के आसपास होते हैं। सो ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाली एग्जाम है। तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि किस तरीके से इसका बेसिकली पेपर होता है ना? तो आप पेपर देखना चाहेंगे? मैं आपको थोड़ा सा एक इसका पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, इसका पेपर किस तरीके से होता है, आपको पेपर दिखाता हूँ। इसका स्पेसिमेन है मेरे पास अवेलेबल। पोस्ट इज डिसेबल्ड पार्टी। अच्छा, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता। सो इफ होस्ट allow me to share my screen, I can share the screen and show this sample paper to the students. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई शंका, कुछ पूछना है? यू कैन आस्क। नो, ओके, वेरी गुड, ग्रेट। ठीक है। पोस्ट कौन है? प्लीज, यस बेटा, मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए राइट्स देंगे। एक मिनट। Yes, sir, you have access. Okay, great. Can you see the screen? Yes, sir, we can see your screen. Okay, great. So if you can see, ये देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, ये जो मीडियम है, इस तरीके का आपको पेपर आएगा। ये जनरल नॉलेज का पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो ये बुकलेट नंबर रहेगा, लाइक नॉर्मल एग्जाम पेपर। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इफ यू वांट टू चेक दिस पेपर, मैं आपको लिंक भी दूंगा। मैं जस्ट देखो, ये जो है ये बेसिकली इंग्लिश के लिए है ना। तो मैं आगे थोड़ा सा जाता हूँ तो आपको पता चलेगा। सी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इस तरीके के सवाल है, तो 200 वर्ड्स में इसको आंसर करना है, तो आपको लिखना है। ये यहाँ पे जगह दी गई है। देन ये देखिए, ट्रेस द मेन इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री
फ्रॉम द क्रिप्स मिशन टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये भी एक सवाल है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये बेसिकली जनरल नॉलेज के ऊपर है। एन्यूमरेट द कॉज फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। आपको रीडिंग जो है, हिस्ट्री जो है, वो आपको ब्रीफली थोड़ी रीड करनी पड़ेगी। We again discuss the contribution of various organizations in the social and religious reform movement during the 19th century. Then again, this question: if you can see, how does increasing current account deficit fall in the diversity against the US dollar? Why remedial measures have been suggested? इसके ऊपर भी सवाल है। India is going to experience the situation of demographic dividend in the near future. Roughly around 2025 is indicated to be the next. So, इन मुद्दों को पढ़ के आपको उसके ऊपर सोचना भी है, आपको आपका ओपिनियन भी उसके अंदर लिखना है। देखिए, ये भी सवाल है, व्हाट इज ब्लैक इनकम। तो ये जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है वो इस तरीके से रहता है। आपको ऊपर शेयर करना चाहूंगा। दूसरा, ये जो है, ये जनरल स्टडीज 1 वाला पेपर है। बेसिकली जनरल स्टडीज में किस तरीके के सवाल होते हैं। सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इन द नीड ऑफ मोमेंट, उसको भी आपको सेम पैटर्न है। ये जो है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस इफ यू वांट टू सी, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। देखिए, एक लिंक है upsc.gov.in, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। यहाँ पर होम पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, किस तरीके की यहाँ पे सिलेबस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एडमिट, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो दिस इज द साइट upsc.gov.in। देन यहाँ पे एक्टिव एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल्स आपको मिलेगी, कौन से रिक्रूटमेंट चल रही है उसके बारे में। और आप एग्जामिनेशन सेक्शन में अगर जाएंगे, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, आने वाले एग्जामिनेशंस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। देन मॉडल कम आंसर बुकलेट भी है। तो यू हैव टू सी। अभी हमारे पास जो वक्त है, आधे एक घंटे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो चीजें हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन, आपको R&D करनी पड़ेगी। मैं आपको लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ। So by accessing this link, आप वहाँ पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, चलो, ये हो गया यूपीएससी के बारे में। नाउ, कितने लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं? कॉलेज कुठलं तुझं? FG9। हेलो, am I audible? आप लोग यहाँ तक समझा? So after this, I would like to share information regarding MPSC. अपने so MPSC is basically it stands for Maharashtra Public Service Commission. आपने ये सोचा होगा कि आपके यहाँ पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, DYSP ये पोजीशन होती है, IPS, IPS नहीं, PSI, PI, जो पोजीशंस होती है, इसके लिए बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है कंडक्ट की जाती है। MPSC के अच्छा, यहाँ तक आपको कुछ डाउट था? यहाँ तक कुछ डाउट था किसी को? एनी क्वेरीज? क्लियर? Everything is clear? Okay, great. So
आप जब यूपीएससी के लिए तैयार करते हो उसी तरीके से एमपीएससी के लिए भी तैयारी की जा सकती है, लेकिन एमपीएससी जो है वो थोड़ा उतना जो लेवल होता है उतना टफ नहीं होता है। तो उसमें भी 3 टाइप्स है, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। अब जो प्रीलिम्स होती है इसमें अंदर सेम पैटर्न है, पेपर 1 पेपर 2 100 और 80 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस है, सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चंस है, टोटल 200 मार्क्स है। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है जो पेपर 1 में प्रीलिम्स में आपको पूछा जाता है वो डिग्री लेवल का होता है थोड़ा, और जो मीडियम ऑफ आंसरिंग है वो इंग्लिश और मराठी है। और पेपर 2 जो है उसका 10th जो डिग्री और स्कूल लेवल के होते हैं 10th 12th के हिसाब से उसको एक्चुअली वो एग्जाम जो है वो कंडक्ट की जाती है। अब इसके अंदर एमपीएससी में पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो मेरिट रैंकिंग के लिए कंसिडर की जाती है फॉर क्वालिफाइंग द एमपीएससी मेंस। ठीक है, अब जैसे आईएएस एग्जाम में यूपीएससी में वो क्वालिफाइंग के लिए सिर्फ 33% क्राइटेरिया है, यहाँ पे ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। प्रीलिम्स मार्क्स जो है आईएएस एग्जाम में वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जाते। उसमें जो यूपीएससी है उसके अंदर सिर्फ आपकी मेन एग्जाम जो उसको किया जाता है कि प्रीलिम्स अगर आप पास करते हो तो बाद में अंत में जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें आपका मेन पेपर और इंटरव्यू इन दोनों को कंबाइन करके वो मेरिट लिस्ट कंसिडर की जाती है। जब एमपीएससी की बात करते हैं, एमपीएससी में आपको इंग्लिश और मराठी ये 2 लैंग्वेज जो होती है वो मेन लैंग्वेजेस होती है। उसमें जैसे पेपर 1 और पेपर 2 है वो दिए जाते हैं। अब पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो उसमें बेसिकली आपका जनरल नॉलेज जो डिग्री लेवल तक है वो दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जो मेन एग्जाम होती है उसके अंदर इसमें भी 6 पेपर्स है, 6 पेपर्स है, पेपर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मराठी इंग्लिश ऐसे ट्रांसलेशन ये होता है। देन पेपर 2 जो है वो मराठी एंड इंग्लिश अगेन, लेकिन ऑन ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होता है। मान लीजिए 12th स्टैंडर्ड तक जो आपने पढ़ा है मराठी और इंग्लिश जिस तरीके से पढ़ा है वो ज्यादा उसमें इंक्लूड होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, बाकी जो है वो पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब एमसीक्यूज है। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जो ट्रांसलेशन होते हैं ट्रांसलेशन इसके अंदर है। जो जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज 1 2 3 और 4 ऐसे पेपर्स है। अब पेपर 1 जो पहले वाला जो मैंने आपको कहा प्रीलिम्स में, उसके अंदर जो स्टेट की करंट इवेंट्स है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लेवल की जो इवेंट्स है, देन अगेन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र के ऊपर ज्यादा बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं। इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो पोलाइटी एंड गवर्नेंस है उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर सवाल है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी उसके ऊपर सवाल है। हिस्ट्री में बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री ये पूछा जाता है। नेशनल मूवमेंट के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री जो चीजें है वो पूछी जाती है। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी के अब जो नोट्स है, जो डिटेल्स है उसे आप रेफर कर सकते हैं। पेपर 2 में जो लैंग्वेज के ऊपर उसमें बेसिकली आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। जो मेन सिलेबस है उसके अंदर देखिए जो ऐसे राइटिंग है ना, उसमें 2 टॉपिक या फिर 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक के ऊपर लिखना है टॉपिक सब्जेक्ट को अराउंड 400 वर्ड्स। अब उसमें इंग्लिश पैराग्राफ को मराठी में ट्रांसलेट करना है। देन क्योंकि आपको एक लैंग्वेज के लिए 50 मार्क्स है, मराठी के लिए और इंग्लिश के लिए 50 मार्क्स है, ऐसा वो कंबाइंड 100 मार्क्स का पेपर होता है। देन अगेन इंग्लिश में भी ऐसे राइटिंग होता है कि मराठी में लिखा है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ऐसे भी लिखना है। जो पेपर 2 है ग्रामर एंड कंपोजिशन है, उसमें ग्रामर, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, पंक्चुएशंस, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। सेम फॉर मराठी और इंग्लिश, मतलब दोनों के लिए। अब जो मेन की अगर हम बात करें तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स जो उसका स्पेशल रेफरेंस रहेगा महाराष्ट्र के से, जिसमें इंक्लूड होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर सवाल होंगे। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सवाल होंगे। इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर सवाल होंगे। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, उसके ऊपर सवाल होंगे। जुडिशियरी किस तरीके से होती है। मास मीडिया के ऊपर भी सवाल होते हैं। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर सवाल है। तो इस तरीके से वो एग्जाम होती है। देन अगेन जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है पेपर 5 से, उसमें ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये इंक्लूड होता है। पेपर 6 जो उसमें जनरल स्टडीज है,
तो इस तरीके का ये पैटर्न है। अगर आप चाहते हो तो एमपीएससी का भी मैं आपको सिलेबस जो है आई कैन शेयर इट विथ यू। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इट इज अवेलेबल ऑन एमपीएससी साइट एज वेल। मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? No, sir. नाउ Yes, sir. We can see it now. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो स्टेट सर्विस मेन एग्जामिनेशन मराठी फॉर्मेट, इंग्लिश फॉर्मेट, ये जो अलग अलग पोजीशंस हैं उसके लिए बेसिकली अब यहाँ पे 9 नंबर हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके सिलेबस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो सिलेबस इस तरीके से आपको दर्जा यहाँ पे जो लिखा है शाला, मतलब जो स्कूल लेवल जो है उसके ऊपर आपको बेसिकली सवाल पूछे जाएंगे। आप देखेंगे कि आज अभी तक जो आपने स्कूल में जो पढ़ा है, जो हिस्ट्री आपने जो पढ़ी है या फिर जो भी किताबें आपको, तो आपको बेसिकली 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सारी की सारी टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है, जो भी आपके लिए काफी आसान है। ये जो चैप्टर्स हैं, ये देखिए, ये उनके सेक्शंस हैं, उसमें कितने मार्क्स कितने कौन से टॉपिक को है बेसिकली दिए गए। आप देखेंगे जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 30 मार्क्स के उसके ऊपर सवाल होंगे। इंडियन पिनल कोड जो है उसके ऊपर 60 मार्क्स के सवाल होंगे। 2020 यहाँ पे दिए किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके ऊपर देखिए जो भी पोजीशन होती है उसमें जो मेजर पेपर होता है उसके ऊपर बेसिकली सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको इस पैटर्न को समझ के उस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपको आसानी जाए। आप बेवजह ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आपको जब पता है कि आर्म्स एक्ट के ऊपर मुझे 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ पे वो सेक्शंस है उसको आप पढ़ के रखेंगे तो इट विल बी इजी। क्योंकि अभी आपको सिलेबस जब आप जानते हो तो तब आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी, किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? मैं लिंक भी आपके साथ शेयर करके रखता हूँ। इट इज so you can access this link and check the detailed information regarding this. इसके अलावा और कुछ किसी को सवाल है? अभी क्लियर? अच्छा, इसके बाद ऐसे भी कई लोग होंगे जिन्हें बैंकिंग में उनका करियर करना है। सो आईबीपीएस जो एग्जाम है वो उसके लिए कंडक्ट की जाती है, जिसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर और बाकी जो पोजीशंस होते हैं उसके लिए एग्जाम बेसिकली की जाती है। तो कुछ बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनके लिए ये बेसिकली एग्जाम कंडक्ट की जाती है। जैसे इसमें आईबीपीएस एग्जाम में बेसिकली आईबीपीएस जो एग्जाम है वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, सिलेक्शन, असेसमेंट और मैनेजमेंट जो है बैंकिंग सेक्शन में वो करते हैं। फिर उसमें आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस इज द बॉडी हु कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन। आईबीपीएस जो होती है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो नॉमिनीज होते हैं उनसे बनी है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईआईटी जो है वहाँ के जो मेंबर्स हैं उस हिसाब से ये सब लोग जो है दीज आर द बोर्ड मेंबर। अब आईबीपीएस में बेसिकली प्रोबेशनरी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, क्लर्क एग्जाम, देन उसके ऊपर जो होती है वो मतलब आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआर, रीजनल रूरल बैंक्स, इसके लिए वो एग्जाम कंडक्ट की जाती है, जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ जो नेशनलाइज बैंक है, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, उन बैंक्स के लिए ये एग्जाम बेसिकली कंडक्ट की जाती है। उसमें जो स्किल होता है,
लेवल होती है ऑफिसर्स की, वो अगेन ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं। जो ग्रुप ए में होते हैं वो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। तो इसके भी जो प्रीलिम एग्जाम होते हैं वो बेसिकली अक्टूबर के दरमियान होती है, और जो मेन एग्जाम होती है वो नवंबर के दरमियान होती है। उसके बाद जो है वो इंटरव्यू होता है। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भी एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स, एक सिंगल एग्जाम भी उसमें होती है जो स्केल 1 और स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए होती है, और मेन एग्जाम होता है। अब ये जो है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, क्योंकि इसके लिए 1 या 2 घंटे काफी नहीं होते हैं। IBPS में भी इंग्लिश लैंग्वेज एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इसमें डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी डिपेंड होता है। तो एज कम्पेयर विद यूपीएससी एंड एमपीएससी ये काफी आसान होती है एग्जाम। अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करें। इट इज नॉट दैट टफ जितना आपको बताया गया है या फिर आपने सुना है, उतना भी टफ नहीं है। इट इज डूएबल, आप उसे कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी लगेगी, आपको स्ट्रेटेजी लगेगी, आपको डेडिकेशन चाहिए, यू विल बी एबल टू डू। आपको ये समझना चाहिए कि मुझे प्रिपेयर करते वक्त कौन से सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है। जैसे अगर जनरल नॉलेज के बारे में आप बात करेंगे तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, इसको आप नॉट मोर देन 45 मिनट्स, आपको उससे ज्यादा आपको डेली नहीं देना है। बाकी सब्जेक्ट पे भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। सो अभी तक एनी क्वेरीज, एनी डाउट? एज यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, आप सब लोग ग्रेजुएट हो रहे हो, यू आर अंडर द, आपका जो कॉलेज है कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सो यूनिवर्सिटी में अगर आप आएंगे तो यूपीएससी एमपीएससी के लिए काउंसिल है जो आप स्टूडेंट्स के लिए ही है। कभी यूनिवर्सिटी आएंगे आपको वहाँ से गाइडेंस भी मिलेगा, और कुछ क्लासेस भी कंडक्ट किए जाते हैं। उसमें फीस ज्यादा नहीं होती है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ना के बराबर फीस होती है, कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं। सो इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, इसके बाद आपको गाइडेंस चाहिए, प्रिपेयर करना है, यू कैन कनेक्ट विद योर मेंटर and they can connect with us, so we'll be glad to help you. Okay, all the best. Any queries? Any queries? स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत अच्छा मौका है ये सर को सवाल पूछने का, सो प्लीज सवाल पूछिए क्वेश्चंस में या अनम्यूट करके। How to do CDS exam for girls? So CDS exam जो होती है वो होता है सिविक डिफेंस, राइट? अब तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन है, वो बेसिकली ट्वाइस अ ईयर की जाती है यूपीएससी के अंडर। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम के लिए जो एज लिमिट है, मानिए IMA है, एयरफोर्स एकेडमी है या एकेडमी, उसमें एज लिमिट जो है वो तकरीबन 19 टू मैक्स आई गेस 25 ईयर्स है। उसमें लैंग्वेजेस जो है हिंदी और इंग्लिश, उसके अंदर आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जो सीडीएस एग्जाम होता है उसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई, फीमेल और मेल बोथ के लिए होता है। अब सीडीएस के लिए जिस तरीके से मैंने यूपीएससी का जो पैटर्न आपको मैंने बताया है उस तरीके से ही पैटर्न होता है, लेकिन आपको जो सवाल होते हैं या फिर जो पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, उस एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन है, आपका इंटरव्यू भी है। अब IMA, INA और AFA इन तीनों के लिए आपको एग्जाम देनी है। इसमें एलिमेंट्री लेवल का मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, और आप 12 तक जो किया है। अब इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, उसमें हर एक सेक्शन के लिए 2-2 आवर्स जो है वो दी जाते हैं। टोटल 300 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है, और जो OTA के लिए जो सेक्शन है उसमें इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, उसमें भी 2-2 आवर्स का एग्जाम। अब इसमें ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटेजी है, एग्जाम टेकिंग जो स्ट्रेटेजी है वो हर उसको समझना पड़ेगा। हर एक सवाल के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलता है, लेकिन जो 0.33 मार्क्स है वो हर एक रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए डिडक्ट भी होता है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर क्वेश्चन आपने अनआंसर्ड छोड़ दिए तो वो नेगेटिव मार्किंग में कंसीडर नहीं किए जाते। ठीक है, मतलब 1/3 जो मार्क है वो आपके
डिडक्ट होते हैं। अब जो सीडीएस एग्जाम पैटर्न है या जो इंटरव्यू पैटर्न है, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी जो स्टेज 1 है उसकी स्टेज, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। हेलो कुणाल जी, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूँ, मैंने वर्कशॉप। हाँ, थैंक यू। ओके ओके, दे हैव डन इट। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। ओके, अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। सो सीडीएस सिलेबस में बेसिकली जो मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री लेवल का मैथमेटिक्स है, उसके अंदर अलजेब्रा, अरिथमेटिक, जो अलजेब्रा है उसमें बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम वगैरह जो हम करते हैं ना, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमिनल्स, लॉ ऑफ इंडाइसेस, इस तरीके के सवाल है। जो अरिथमेटिक सवाल होंगे उसमें नेचुरल नंबर्स, इंटीग्रेशन, रैशनल रियल नंबर्स, देन यूनिटरी मेथड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, उसके ऊपर सवाल होते हैं। ज्योमेट्री के सवाल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर सवाल है। तो उसको आपको समझना होगा। जो इंग्लिश है उसमें एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये सारी चीजें होती है। जनरल नॉलेज में आपको करंट अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिफेंस, स्पोर्ट एंड कल्चर, उसके ऊपर सवाल होंगे। अब आर.एस. अग्रवाल की एक बुक है मैथमेटिक्स की, और आर.एस. अग्रवाल और चांद पब्लिकेशन की बुक है बेसिकली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसको आप प्रेफर करेंगे। देन फॉर जनरल नॉलेज आप रेगुलर न्यूज़पेपर जो है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, एक प्रतियोगिता दर्पण करके एक मैगजीन आती है, देन सीएसआर मैगजीन आता है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। और एक मैं बताऊंगा, पाल और सूरी का इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन का बुक है, उसे आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सानिका शिरवल, so you got your answer, Sanika? Any more queries? Can we give UPSC exam in Marathi? नहीं बेटा। So basically क्या है कि जो एग्जाम है वो नेशनल लेवल पे होती है ना, तो मराठी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट में, इन ऑप्शनल सब्जेक्ट यू कैन चूज मराठी इन लिटरेचर, ठीक है, बट जो एग्जाम है वो इंग्लिश और हिंदी में होती है। एमपीएससी जो होती है, एमपीएससी में आप मराठी और इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं। एमपीएससी बेसिकली बेटा चंपा चौधरी कशा, तो एमपीएससी जी असते ना ती मराठी आणि इंग्रजीमध्ये आपण देऊ शकतो, त्या दोन ऑप्शनल लँग्वेज आहेत अवेलेबल। एनी अदर क्वेरीज? We good? No, very good. Chalo. Thank you very much. So I would like to thank Dell India. I would like to thank American India Foundation and all of you, FG Naik faculties and the host, for giving me an opportunity to interact with the students. And this is a very good batch. You all are very sincere. All the best. If you need any help, you're always welcome. Thank you very much. Good day. Thank you so much, sir, for guiding the students today. I would like to thank you on behalf of AIF, American India Foundation, NSDC, Dell Technologies, on behalf of principal of our college, and also from the director, Dr. Shivram Garze sir and Ms. Shilpa Rodkar ma'am. Today's session was indeed very good. I hope everyone enjoyed a lot and learned a lot today. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. So I'll In take case, yes, sir. In case anyone else has any queries, we will like to log out now. Thank you so much for having us here today. I will log out now.